Hello students, I am Bhupendra Bairagi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupen sir. Today we will discuss the second lesson of your Honeydew book from class 8th and the name of the lesson is the tsunami. So if you like the video, click the like button and subscribe to my channel. You can also mention your comments in the comment box and share this video to your friends. So let's go with the lesson. The tsunami. So first of all we will read the content which is written under the heading of before you read. Look at the map of the Andaman and Nicobar Islands given here. So here writer has given us the maps of Andaman and Nicobar Islands. So have a quick look which is on your screen. As you can see, Andaman Islands contains so much islands like North Andaman, Middle Andaman, Lower Andaman, Port Blair, Andaman Sea, Little Andaman. So there are some islands, and in Nicobar Island group there are Indian Ocean is in Indian Ocean actually, and Car Nicobar, Tarasa, Katchal, Nanakori, Little Nicobar, Great Nicobar. So these are the islands which comes under the Andaman and Nicobar Islands group. So here writer wants to ask us some question. Let's see. Now read the sentences below. Read out the incorrect ones after correcting the mistake. So here he has given us some sentences and he wants us to correct them if they are incorrect. So Katchal is an island. So let's see on the map. Yes, it is in the it is in the Nicobar Island. Here you can see below the Tarasa Katchal, right? So yes, it's an island. So it's a true. Second thing, it is a part of Andaman group of island. No, it is the part of Nicobar group of island. Nankauri is an island in the Nicobar group. Yes, it is in Nicobar group near the Katchal. Katchal and Nankauri are more than 100 miles apart. No, they are very near, right? The Andaman and Nicobar Islands are to the west of India. No, it is in the southern east side. The Nicobar Islands are to the north of the Andaman. No, it is not in the north of Andaman. Andaman is in north of Nicobar Island. So here we have given the answers of these sentences. We have corrected them. Now moving towards what is tsunami. Actually here comes the introduction of tsunami. तो आपने भी सुना होगा क्या होती है सुनामी, लेकिन फिर भी राइटर के हिसाब से हम एक बार समझते हैं. अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी. क्या कहा गया है कि सुनामी जो है वो बहुत ही बड़ी और बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल वेव्स होती है, लहरें उठती है जो कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आने की वजह से आता है. जिससे अर्थक्वेक आता है, धरती पे अर्थक्वेक आता है तो सारी चीज़ें हिल जाती है, धरती पे बिल्डिंग्स गिर जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. ऐसे जब समुद्र पे अर्थक्वेक आता है, समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है, प्लेटेट्स जो होती हैं धरती की जो हिलती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, समुद्र में तो पानी होता है तो पानी की लहरें ऊपर नीचे होती है, हिलता है, और हिलने की वजह से वो ऊपर नीचे होती है, गैप फिलिंग होती है, गैप फिल होने के बाद वो और ऊँची होती जाती है और इस तरह से लंबी ऊँची और पावरफुल लहरें तैयार होती हैं. उन्हीं लहरों को सुनामी कहते हैं. सुनामी जो है कई जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे आ चुका है, इससे बहुत तबाही होती है, तो इसी के रिलेटेड ये लेसन है. On 26th of December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands. क्या कहा गया है? And the Tamil Nadu coast. 26th of December 2004, right? लगभग 16 साल पहले आज से क्या बताया गया है कि सुनामी आई थी. एक ऐसी ही सुनामी आई थी जो कि थाईलैंड में आई थी और इंडिया के कुछ पार्ट्स में आई थी. अब इंडिया के पार्ट्स कौन से, जो कोस्टल एरिया है. कोस्टल एरिया में कौन कौन से कोस्टल एरिया की बात की जा रही है यहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट. तमिलनाडु का जो कोस्ट है उस कोस्ट में और अंडमान और निकोबार आइलैंड में सुनामी आई थी. हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. तो जब सुनामी आती है, सुनामी क्या है? सुनामी एक तरह का तूफान है, समुद्री तूफान हम इसको कह सकते हैं, जो समुद्र में आता है. अब समुद्र में तूफान आया है, समुद्र किनारे उसका असर होता है. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ स्टोरी है जिसमें करेज की बात हो रही है, हिम्मत की बात हो रही है, सर्वाइवल की बात हो रही है कि कैसे उन्होंने इस सिचुएशन में सर्वाइव किया. Here writer wants to ask us a question. Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did.
ये कह रहे हैं कि क्या एनिमल्स को, जानवरों को, जैसे पालतू जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, क्या उनको पहले से पता चल जाता है कि सुनामी आ रही है? और ये कह रहे हैं कि कुछ स्टोरीज़ ऐसा बताती हैं कि शायद उनको पहले से पता चल जाता है। पोइट राइटर ने हमारे पास क्वेश्चन भी रखा है और आंसर भी किया है। इसके पीछे वो हमें जस्टिफिकेशन भी देंगे लेसन में। सो हियर कम्स द फर्स्ट पार्ट, सी द इमेज ऑन योर स्क्रीन। जैसे सुनामी आती है तो किस तरह से सब कुछ बह जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं पूरे सब जगह पानी पानी हो गया। यहाँ पे एक घर जो है वो बह गया है, साथ में आप कार देख रहे हैं, पेड़ जो हैं वो भी बह रहे हैं, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं और ये रियल पिक्चर है, इस तरह से ही होता है। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सुनामी। दिस इज़ अ लार्ज लेसन, राइट? सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू आई थिंक 3 पार्ट्स। सो वी विल डिस्कस द each part separately. So let's discuss the first part. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. So what is that? ये जो स्टोरीज़ हैं वो अंडमान और निकोबार के आर्कीपेलागो का है। आर्कीपेलागो मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसको आर्कीपेलागो कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं स्पेलिंग, अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी, राइट? आइलैंड है और आइलैंड जो होते हैं समुद्र में होते हैं, तो आसपास जिस समुद्र से घिरा है उसको क्या कहते हैं? आर्कीपेलागो। तो आर्कीपेलागो से हैं। अब ये स्टोरीज किस बारे में हैं, किन की हैं? यहाँ पे कैरेक्टर कौन है? इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैटचल। इग्निशियस एक कैरेक्टर है, एक व्यक्ति है, उनका नाम है, जो कि मैनेजर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप जानते हैं बैंक की तरह जो काम करती है, वही, राइट? हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। तो जो इग्निशियस है उनकी वाइफ ने उनको सुबह 6 बजे जगाया क्योंकि उन्हें ऐसा लगा शायद अर्थक्वेक आ रहा है। अर्थक्वेक जानते हैं आप? धरती का हिलना, राइट? जो हमारी धरती है, अर्थ जो है, अर्थ के अंदर लेयर्स है अलग अलग। जो लास्ट अंदर जो इनर मोस्ट लेयर है उसमें सब कुछ लिक्विड या गैसेस फॉर्म में है, तो उनमें जो हलचल होती है उसकी वजह से धरती हिलती है, उसी को अर्थक्वेक कहते हैं। ये आपको एसएसटी में ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो इग्निशियस ने जब महसूस किया कि अर्थक्वेक है, उनकी वाइफ ने उन्हें उठाया, तो उन्होंने क्या करा, अपने टीवी सेट को, टेलीविज़न सेट को, टीवी को उठा करके ज़मीन पर रख दिया, टेबल से उठा के। उन्हें ये लगा कि ये अर्थक्वेक है तो कहीं टीवी गिर के फूट ना जाए। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। और फिर क्या हुआ, पूरा परिवार वहाँ से तेज़ी से बाहर निकला। जब भी आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, जब अर्थक्वेक होता है तो हमें घर से बाहर निकल जाना होता है, क्योंकि क्या होता है अर्थक्वेक में बिल्डिंग्स टूट जाती है और टूट के अगर हमारे ऊपर गिरी तो हमारी जान भी जा सकती है। सामान अगर टूटेगा तो दोबारा लाया जा सकता है, जान बहुत कीमती है। तो वो इसी वजह से वो भी तेज़ी से दौड़ कर के बाहर को निकले, ये सोचते हुए कि अर्थक्वेक है तो हम बाहर जाके सेफ हो जाएंगे, ये गिरेगा नहीं हमारे ऊपर। When the tremors stopped, they saw the sea rising. लेकिन क्या हुआ जब ट्रेमर्स स्टॉप हो गए? ट्रेमर्स क्या होते हैं? ट्रेमर्स वो होते हैं भूकंप के झटके, जिसे आप यहाँ पे मीनिंग देख सकते हैं। ट्रेमर क्या? अ स्लाइट शेक अर्थ ट्रेमर्स, द अर्थ शेक ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टाइम पे जो अर्थ शेक करती है, धीरे धीरे हिलती है, उसी को ट्रेमर्स कहते हैं। तो कह रहे हैं कि व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग। जैसे ही धरती का हिलना बंद हुआ तो उन्होंने देखा कि जो समुद्र है उसमें उफान आ रहा है। राइजिंग मतलब समुद्र रुकता नहीं है, उफान आ रहा है, उठ रहा है। इन द क्योज एंड कन्फ्यूजन, क्योज मतलब क्या होता है? हड़बड़ी, घबराहट। जब हम कई बार जल्दीबाजी में होते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, वैसे ही। तो इन द क्योज एंड कन्फ्यूजन 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. अब क्योंकि क्योस हो गया, घबरा गए, अचानक से तूफान कह के तो आया नहीं, तो अचानक से आया तो घबरा के, घबराहट में क्या हुआ, उनके 2 बच्चों ने, एक ने तो उनकी मम्मी का हाथ पकड़ा और एक ने उनके पापा का हाथ पकड़ा और एक ने मम्मी के भाई का हाथ पकड़ा, यानी कि अपने नाना जी और अपने मामा का हाथ पकड़ लिया। और जिस डायरेक्शन में दौड़ना चाहिए उस तरफ ना जाकर के उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, जिस तरफ से सुनामी आ रही थी उसी तरफ चलेगा। ही नेवर सॉ देम अगेन। अब इग्निशियस के बारे में बता रहे कि इग्निशियस ने उनको वापस कभी नहीं देखा, क्योंकि सुनामी की लहरें बहुत ऊंची होती है। आप कितने भी अच्छे तैराक हैं, कितने भी अच्छे स्विमर हैं, वो आपको बहा ले जा सकती है। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। क्या हुआ, उनकी जो वाइफ थी, इग्निशियस की वाइफ थी, वो भी पानी में बह गई।
ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड। केवल उनके साथ जो 3 बच्चे उनके रह गए थे, जो उनके साथ आए थे, वही बच पाए। मतलब बाकी उनका पूरी फैमिली जो है वो पानी में बह गई। तो इग्निशियस की स्टोरी जो है वो बड़ी सैड है। मतलब एक ही दिन में अचानक में कुछ ही देर में उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को गंवा दिया। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कैचल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब संजीव कौन है? एक पुलिसमैन है। वो क्या करते हैं? वो सर्व करते हैं, वो सेवा देते हैं अपनी कैचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। कैचल में उनकी पोस्टिंग है। ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। उन्होंने किसी तरह से अपने आप को तो मैनेज कर लिया बचाने के लिए, बट हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। बट देन ही हर्ड cries of help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. तो क्या हुआ? उन्होंने किसी तरह से अपने आप को, अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को बचा लिया था, लेकिन जब जैसे ही उन्होंने चिल्लाना सुना, उनके जो कुक है वो गेस्ट हाउस में, उनकी जॉन नाम का जो कुक है, उनकी वाइफ की आवाज़ सुनी, चिल्लाना सुना, बचाओ बचाओ की आवाज़ें सुनी, तो उन कूद पड़े वो पानी में उनको बचाने के लिए। लेकिन वो पानी जो है, उस पानी में कूदने के बाद ना तो संजीव बच पाए, ना जो गेस्ट हाउस के कुक थे संजीव, उनकी वाइफ बच पाए। दोनों ही बह गए। मतलब वो वापस नहीं आ पाए। सी द इमेज, द डिस्ट्रक्शन यू कैन सी। कैसा होता है? पूरे घर गिर गए हैं, लोग यहाँ पे अपने सामान शायद तलाश रहे हैं, देख रहे हैं, बेघर हो गए हैं। ये सब चीज़ें हो रही हैं। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. अब क्या हो रहा है? मेघना करके एक लड़की है जो कि 13 साल की है, लगभग आप लोगों की एज की। वो अपने पेरेंट्स के साथ और 77 अदर पीपल, और 77 और भी लोग थे उनके साथ, वो भी बह गई। क्या होता है, जब जो कोस्टल एरिया होता है उसमें गांव के गांव बह जाते हैं अगर इस तरह की सुनामी आती है। शी स्वेप्ट 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door. क्या हुआ? उसको पूरे 2 दिन बीत गए। उसने एक लकड़ी के दरवाजे के ऊपर बहते बहते, तैरते तैरते बिताए समुद्र में 2 दिन। 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. उन्होंने अपने ऊपर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर, जो कि रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं, किसी बचाव कार्य में लगाए जाते हैं, वो हेलीकॉप्टर उन्होंने 11 बार देखे, लेकिन फिर भी वो हेलीकॉप्टर वाले शायद उनको नहीं देख पाया। शी वॉज बॉट टू द शोर बाय अ वेव। फिर वो किनारे पर कैसे पहुंची? एक वेव के थ्रू, एक लहर आई, उसके थ्रू उन्हें किनारे पर लाया गया, शोर पर लाया गया। शोर यानी किनारा। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज। और वो कैसी लग रही थी वहाँ पे आने के बाद? वो बिल्कुल भौचक्की सी हो गई थी, डर गई थी, घबराई हुई थी, और उसे सी शोर पे देखा गया कि पैदल पैदल चल रही है। 2 दिन बाद वो पहुँची है। उन्होंने ना कुछ खाया होगा, ना कुछ पिया होगा, साथ ही उनकी फैमिली पूरी जा चुकी है, तो उसकी घबराहट भी उनके अंदर है। तो उन्हें देखा गया 2 दिन बाद। आगे बढ़ते हैं। अलमास जावेद वॉज 10 year old। अलमास जावेद जो है वो उनसे भी छोटा है। कितने साल के हैं? 10 साल के। She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. तो अलमास के पापा का पेट्रोल पंप है पोर्ट ब्लेयर में। वहीं पे कैमल कॉन्वेंट करके स्कूल है, उस स्कूल में पढ़ते थे अलमास। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नानकाउरी आइलैंड। और उनकी माँ जो है राहिला, उनका जो घर है वो कहाँ है? नानकाउरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो पोर्ट ब्लेयर में नहीं थे, ये कहाँ थे? नानकाउरी में आ गए थे क्रिसमस मनाने के लिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कब आया था सुनामी, कब आया था हमने देखा, कब हिट किया था? जस्ट 26 दिसंबर 2004 को। आपका जो प्रीवियस लेसन था वो भी क्रिसमस के आसपास का था, और ये सुनामी जो है ये भी क्रिसमस के आसपास का है। अब क्या हुआ? वो क्रिसमस मनाने आए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ उनके साथ? अलग अलग स्टोरी है। इग्निशियस की स्टोरी हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एक और लड़की थी जिनका नाम था मेघना, उनकी स्टोरी हो गई। अब अलमास की स्टोरी आ रही है। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. क्या कह रहे हैं कि जब सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए, तब जो परिवार है पूरी फैमिली सो रही थी। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रेसिड
he understood that the water would come rushing back with great force. अब क्या देखा, अलमास के पापा ने देखा, अलमास के फादर ने देखा कि जो पानी है समुद्र का वो बढ़ते जा रहा है, उठता जा रहा है, और वो समझ गए कि पानी जो है वो कभी भी पीछे से या तेज़ी से उनके पास आ जाएगा, पहुंच जाएगा. ही वॉक एवरी वन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू द सेफर प्लेस. उन्होंने सबको जगाया और उन सबको जल्दी से सेफर प्लेस यानी जो सुरक्षित जगह है वहाँ पे ले जाने की कोशिश की. एज दे रेन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन. जैसे दौड़ रहे थे तो दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, उनके दादाजी जो है, अलमास के दादाजी जो हैं, या उनके सिर पे कुछ लगा और वो नीचे गिर गए. हर फादर रश टू हेल्प हिम. उनके पिताजी जो थे, अलमास के पिताजी, वो अपने अलमास के दादाजी की हेल्प करने के लिए गए. देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. और उसी टाइम पे क्या हुआ, उनका बचाने के लिए जाने का हुआ, उनको उठाने हेल्प करने के लिए जाने का हुआ, और उसी टाइम पे एक बड़ी सी सबसे बड़ी लहर आ गई और उन दोनों को बहाकर ले गई. Almas' mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree, and they too were washed away. अलमास की जो माता जी हैं और अलमास की जो आंट हैं, वो उन लोगों ने कोकोनट ट्री के पत्तों को पकड़ करके ग्रिप में ले करके वहाँ पे टिकी रही कि पानी की से हम बहेंगे नहीं. और वो अलमास का नाम ले रही थी बार बार. अलमास जो है वो लड़की है ना, तो उनका नाम ले रही थी बार बार. लेकिन क्या हुआ, अ वेव अपरूटेड द ट्री. लेकिन एक बड़ी सी लहर आई और वो पेड़ को उखाड़ कर ले गई. एंड दे टू वर वॉश्ड अवे. और वो दोनों भी वहाँ पर बह गए. Almas saw a log of wood floating. She climbed on to it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Kamorta. From there, she was brought to Port Blair. अलमास ने क्या देखा, अलमास ने देखा कि उनकी माँ बह गई, उनकी चाची बह गई, उनके दादाजी बह गए, उनके पापा बह गए. पर उन्होंने देखा कि एक लकड़ी जो है, वुड लॉग यानी लकड़ी का गट्ठा बोल सकते हैं हम, बड़ी लकड़ी, वो बह रही है. तो उन्होंने देखा, वो उनके ऊपर चढ़ गई और चढ़ने के बाद वो बेहोश हो गई. फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना, चक्कर खा के बेहोश हो जाना. आपके जो कॉन्शियसनेस है वो चली जाती है, अनकॉन्शियस होना. जब वो वापस जागी, उन्होंने देखा शी वॉज इन हॉस्पिटल. व्हेन शी वोक अप, शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोरथा. जब उनको जागी तो उन्होंने देखा कि कमोरथा के हॉस्पिटल में वो हैं. फ्रॉम देयर शी वॉज बॉट टू पोर्ट ब्लेयर. और वहाँ से उन्हें पोर्ट ब्लेयर लाया गया, क्योंकि वो कहाँ के रहने वाली थी, पोर्ट ब्लेयर की. द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट्स विद एनी वन. शी इज स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड. क्या कह रहे हैं कि जो ये छोटी सी लड़की है, वो अभी भी इस इंसिडेंट्स के बारे में किसी से बात करना नहीं चाहती, क्योंकि अभी वो ट्रॉमा में है. ट्रॉमा मतलब उस स्थिति में है, भौचक की है, अभी भी उनको ये सदमा है. ट्रॉमा मतलब सदमा. तो इस ट्रॉमा में है कि वो अभी भी परेशान हो जाती है जब इस तरह की बात होती है. तो यहाँ पे फर्स्ट लेसन ख़त्म, फर्स्ट पोर्शन जो है इसका, फर्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म होता है, फिनिश होता है. Here we go with the comprehension check. So there are 5 questions in the comprehension check that we will discuss separately, right? And we will discuss the second part and third part in the next video. So here ends the first part of the lesson, and I hope you have understand each and everything. If you have any